नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, पोस्टेड एट गवर्नमेंट GNA PhD कॉलेज भाटापारा. टुडे we are discuss in topic tea, which is related to BSc part 3rd, paper 2nd and unit 5th. I hope this topic is beneficial for the students of BSc second year final students. What is the beverage? Any potable liquid, especially one other than the water, is called beverage. Example: tea, coffee and milk. हम जानते हैं कि आजकल 90% लोगों के द्वारा यूज़ किया जाने वाला बेवरेज पदार्थ चाय और काफ़ी है, और इसकी मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में सुबह में जो लिया जाने वाला पेय पदार्थ काफ़ी है. विशेषकर डेवलपिंग कंट्री में चाय अत्यधिक उपयोग किया जाता है. हम देखते हैं कि टी प्लांट का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस. बॉटनिकल नेम ऑफ द टी इज़ द कैमेलिया साइनेंसिस एंड कैमेलिया assamia. Camellia assamia is related to the Indian species Thea sinensis. Two species, Camellia sinensis and Camellia assamia, is given by the White in 1962. This related to the family Theaceae. Is origin and history. ऐसा समझा जाता है कि सबसे पहले ये चीन में इसका प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन किया जाता था 2700 BC पूर्व. ये चाइना के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, और वहाँ से ही ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट असम पर आया. असम को सेकेंडरी ओरिजिन सेंटर माना जाता है, जहाँ से कि ये कंबोडिया को स्प्रेड हुआ. टी फाउंड इन वाइल्ड स्टेट इन दिस एरियाज, स्पेशली असम एंड द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना. इट बिलीव primary center is called the China, and now it is spread into Tibet, Cambodia, Japan, in London. Duchess it spread into the European area, and now it is spread in the Boston, USA also. Tea growing regions. Nowadays it is found in the Asia, China, Japan, Taiwan, Java, Sumatra, Bangladesh, Indonesia and Sri Lanka. India and Sri Lanka is the world largest producers countries. In India it is found in the Assam, Bengal, Kerala, Nilgiri Hills, Dehradun and Kangara regions. Because these regions are the most favorable for the tea plantations. Botanical description. We know this is the related family Theaceae. Its habit is shrub. Their height is 9 to 15 meters. बार बार प्रूनिंग के कारण ये जस्ट बूसी लाइक श्रब जैसा दिखता है. Flower is generally white. In their position is axillary and fragrance. Fruit is capsule, and they have 4 chambered. In each cell 1 to 3 seeds are present. What ecological factor is better cultivation of the tea plantation? Tea grow in, generally it is grown in the average rainfall where 150 to 200 centimeter found. Tropical and temperate climate is good for the tea plantation and cultivation. High temperature and high humidity is good for their cultivation. Temperate ऐसे जगह जहाँ पर मंथली एवरेज टेम्परेचर 70 to 90 degree Fahrenheit हो, it is good for their cultivation. It grow in high altitudes, mostly 3000 to 400 feet and 7000 above to sea levels. Well manured and rich humus soil is good for the
tree plantation, especially well drainage system is especially required for their cultivation. कल्टीवेशन टी इज यूजली ग्रोन बाय सोइंग सीड्स. इसका जो नर्सरी तैयार किया जाता है वो उसके सीड्स के द्वारा सबसे पहले सबसे बेस्ट सीड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी नर्सरी तैयार करते हैं. 6 से 9 महीने तक सीडलिंग प्लांट्स को खाद दिया जाता है और नर्सरी तैयार किया जाता है. फिर सीडलिंग प्लांट्स को 1 साल के बाद या 9 या 10 महीने के बाद इसको नेक्स्ट कल्टीवेटेड एरिया में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. Preparation of the land. So first one, selection of the land. Land previously occupied by the forest is best for the tree plantation. Completely cleared of tree and then plow to remove the root. ऐसे क्योंकि ये सायोफाइट्स प्लांट्स है और जो छाया में उगता है, तो सबसे पहले ऐसे एरिया को सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि ह्यूमस और मैन्यूर बहुत अधिक हो, और जो पुराने फॉरेस्ट एरिया हैं उसमें ह्यूमस और लीटर बहुत अधिक पाए जाने के कारण ये बेस्ट कल्टीवेशन एरिया साबित होते हैं. इसलिए उनको सेलेक्ट कर उनके जो पूरे पाए जाने वाले पौधे हैं उनके रूट को प्लोइंग के द्वारा रिमूव कर एरिया को क्लीन किया जाता है. प्लांटिंग ऑफ द सीड्स. 3 से 4 फीट गड्ढे खोद कर सीडलिंग्स किया जाता है जिसमें कि सॉयल एंड मैन्यूर्स ऐड करके. देन आफ्टर सीडलिंग रिमूव वीड्स. बहुत सारी विधियों को अपनाकर चाय के पौधों के बीच में पाए जाने वाली वीड्स को रिमूव किया जाता है जिससे कि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो. प्रूनिंग. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द टी कल्टीवेशन. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टी का जो पौधा है वो श्रब है और जितना ज़्यादा प्रूनिंग होगा उसमें उतना अधिक ब्रांचिंग होगी. मच ब्रांचिंग होने के कारण हमें टी लीव्स की सप्लाई लगातार बना रहेगा और उसकी हाइट अधिक नहीं बढ़ने के कारण प्लकिंग इज हेल्पफुल फॉर अस. प्रूनिंग. Generally pruning is 2 types, light pruning and heavy pruning. Light pruning, it means when plants are 3 to 5 years old, एक से 2 बार अगर वर्षों में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइट प्रूनिंग. एंड हैवी प्रूनिंग, जब पौधा 8 से 9 साल पुराना हो जाए तो उसके बेस से ही उसको कट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हैवी प्रूनिंग, जो कि ओल्ड पौधों में किया जाता है. पौधा एक बार तैयार हो जाने के बाद लगभग 200 साल तक लाइफ रहता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 50 साल के बाद कम हो जाती है. व्हाट इज द प्लकिंग? Plucking started after 4 to 5 year old plants. Quality of tea depends upon the age of the leaf. This is the most important factor of the tea preparation. Here we know that the age of the tea is the directly related to the tea quality. But where tannin is found in 24%, here tea quality is directly related to the tannins, and first leaf have 28% tannin, and second leaf have 24% tannin, and third have a 18%, and fourth have a 14%, and fifth is 8 to 9% tannin found. The first leaf gives excellent quality of the tea. ग्रीन टी है जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड लीफ से ही बनाया जाता है, जो कि बेस्ट क्वालिटी माना जाता है. प्रिपरेशन ऑफ द टी. चाय बनाने की विधियाँ. वी नो दैट द 4 टाइप्स ऑफ द टी: ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलांग टी एंड लिपेट टी. ब्लैक टी इज जनरली यूज बाय द जनरल पर्सन. ग्रीन टी जो कि फर्स्ट और सेकेंड पत्ती की तरह बनाया जाता है. ओलांग इज जनरली यूज इन द Oolong is used in the Taiwan, and lippet is used in the Burma in the form of the pipettes. Black tea. हम अब चाय बनाने की जो विधियां हैं उसको देखते हैं, जिसमें कि मेनली 4 स्टेप अपनाया जाता है. फर्स्ट वन इज द विदरिंग. विदरिंग मीन्स जो प्लग्ड और तोड़े गए पत्तियां हैं जिसको कि कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में जहां थोड़ा सा सुखाया जाता है, जिससे कि उसके जो वाटर कंटेंट परसेंटेज है वो कम हो जाए और वो थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाए. देन नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड रोलिंग. जो विदर्ड या फ्लैसिड
पत्तियां हैं उसको रोलिंग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, और रोलिंग होने के बाद अपन ये देखते हैं कि जो एक एक पत्तियों का जो एक एक कोशिकाएं हैं वो ब्रेक होती हैं, उनमें पाए जाने वाले टेनिन और जो थेनिन है वो बाहर आता है, और जूसी एंजाइम्स की जो होने के कारण उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज द कॉल्ड फर्मेंटेशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टी प्रिपरेशन, क्योंकि फर्मेंटेशन के कारण ही चाय में सुगंध, उसका फ्रेग्रेंस एंड रिफ्रेशमेंट का गुण आता है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन पॉलीफिनॉल्स ऑफ कैचिकिन्स जो कि पत्तियों में पाया जाता है वह ऑक्सीडाइज होता है थियाफ्लेविन एंड थियारुबिजिन्स विद द हेल्प ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडाइज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो कैचिकिन्स है वो थियाफ्लेविन एंड थियारुबिजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, which is responsible for the tea fragrance and refreshment. Preparation of the tea completed. Black tea. Next process is the result of the fermentation. Fermentation होने के कारण क्या क्या प्रोसेस चेंज होता है पत्तियों में, उसका सबसे पहले ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है और वो रेडिश कॉपर कलर का हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जो फ्रेग्रेंस और जो एक एरोमा है वो डेवलप होता है। देन देयर टेस्ट एंड रिचनेस एंड कलर एंड स्ट्रेंथ कम इन आफ्टर द फर्मेंटेशन। which is responsible for the fermentation? It is a lactic fermentation. It's done by the Leuconostoc, mesenteroids, Lactobacillus brevis and Lactobacillus plantarum and Streptococcus faecalis. All are responsible for the fermentation process. Drying. After fermented, the leaves dried for the packing. The fermented leaves are conveyed through a air chamber. ऐसे गर्म एयर चैम्बर में जिनका टेम्परेचर 130 फ़ारेनहाइट 130 से 135 फ़ारेनहाइट हो, उसमें 30 मिनट के लिए पत्तियों को गर्म किया जाता है और लास्ट में 4 या 5 मिनट के लिए उसको लगभग 200 फ़ारेनहाइट के लिए रखा जाता है, जिससे कि ड्राइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इस ड्राइंग प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अब फर्मेंटेड लीफ में जिसका कि कलर भी चेंज हो चुका है, स्मेल या फ्रेग्रेंस आ चुका है, उसमें केवल अब पानी केवल 4% बचता है। ग्रेडिंग ऑफ टी, हम जानते हैं कि पत्ती के एज के हिसाब से ग्रेडिंग किया गया है। सबसे अच्छा माना जाता है ऑरेंज टी, उसके बाद अच्छा माना जाता है ऑरेंज पीको एंड ब्रोकन ऑरेंज इज पुअर एंड ब्रोकन ऑरेंज पीको इज द मोस्ट पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी। पैकेजिंग, जो तैयार चाय की पत्तियां हैं उनको प्लाईवुड के बॉक्सेस में जिनका साइज लगभग 24 बाई 19 इंटू 19 इंच का हो उसमें पैक किया जाता है, और मॉइस्चर से बचाने के लिए इसमें एल्युमिनियम पार्चमेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आ पाए, उसकी क्वालिटी हमेशा बना रहे। टाइप्स ऑफ द टी, हमने देखा कि 4 प्रकार की चाय हैं जिसकी बनाने की विधि हमने फर्स्ट का देख चुका है। पहला ब्लैक टी हमने बनाने की विधियाँ देखा है, जिसमें प्लकिंग, विदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग, हीटिंग, ड्राइंग देखा। अब नेक्स्ट जो ग्रीन टी है जो कि चाय पत्ती के फर्स्ट और सेकंड पत्ती से बनाया जाता है। इस ग्रीन टी को बनाने के लिए फर्स्ट विदरिंग एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ओनली रोलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग इज डन। यह ग्रीन टी है जो कि पहले और दूसरे पत्ती के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट ओलोंग टी, हियर इज यह जनरली यूज़ किया जाता है ताइवान के में, जिसमें कि विदरिंग और सेमी फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है। विदरिंग तो होता है लेकिन फर्मेंटेशन की क्रिया कम होती है, कुछ देरों के लिए 2 से 3 घंटों के लिए। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेग्रेंस के लिए, ये जास्मिन फ्लावर या जास्मिन का लीफ मिलाते हैं, जिससे कि चाय की पत्ती में स्पेशल फ्रेग्रेंस रहता है। और आफ्टर सेमी फर्मेंटेशन दे रोलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस इज completed, they have removed the jasmine flowers, leaf and petals. थर्ड एंड फोर्थ टाइप का जो पत्तियां हैं वो इस ओलोंग टी बनाने के काम में आता है। लास्ट वन ब्रिक टी, जो जिसमें कि सभी प्रोसेस आर रिक्वायर्ड है। इट है प्लग, विदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग, हीटिंग एंड ड्राइंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये इस ब्रिक
टी में बनाने के लिए कोर्सर लीव्स ऑन स्टाफ को यूज किया जाता है, जिसमें कि कुछ कुछ राइस पेस्ट का भी उपयोग किया जाता है। पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, चाय के पेड़ों पर भी कीड़ों का और फंगस का भी अटैक होता है, जिसको कंट्रोल, जिससे कि उसके क्रॉप को बहुत अधिक नुकसान होता है। फार्मर इससे बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए वो जैसे फर्स्ट जो कीट है रेड स्पाइडर, उसको हम लाइम एंड सल्फर डस्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। अपन चूना और सल्फर डस्ट के द्वारा इसको स्प्रे करके पौधों पर इस बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरा है मॉस्किटो बग, जिसको कि डीडीटी का छिड़काव करके पौधों के ऊपर डीडीटी का छिड़काव करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। सेफेल्यूरस पैरासिटिकस रेड रस्ट, इसको हम, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। जो भी पौधों में ये सिम्टम्स दिखता है रेड रस्ट का, तो उस पौधे को इरेडिकेट करें और उसे जलाकर नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट इक्जोबेसिडियम वैक्सेंस ब्लाइस्टर ब्लाइट है, जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड का 30 ग्राम को 100 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर छिड़काव करके हम बच सकते हैं। मेलाडोएगनी जवानिका एंड निमेटोड्स causes a disease or root knot disease. It is controlled by EDB का वो 300 लीटर को पर हेक्टेयर में स्प्रे करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। Importance of the tea. Why tea is most popular beverage in world? Because they have the quality of refreshment, remove to fatigueness, and they have content to 4 to 5% caffeine, 2.5% theanine, and 18% tannin, and some volatile aroma as oil glands and oils are also present here. Theanine, which is made up of the carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen. It is a diuretic in nature. Excessive use of the tea is hydrated our body, and then especially taste of टी ड्यू टू द टेनिन। जो चाय का स्पेशल टेस्ट है वो चाय के टेनिन के कारण है, और जो उसका उत्तेजक गुण है वह कैफीन के कारण है, और रिफ्रेशमेंट और ताजगी जो देने वाला गुण है वो थेनिन के कारण है। टोटल वर्ल्ड में किए जाने वाले निर्यात का 50% इंडिया और श्रीलंका के द्वारा किया जाता है। सो इट इज़ गुड फॉर आवर फार्मर्स। चाय का अत्यधिक उपयोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। References for this article, we have used a textbook of the economic botany by Dr. V. Verma, Unified Botany, Dr. N.B. Singh and Dr. S.K. Verma, and Wikipedia. So thank you all of you. I hope this is beneficial for you.